রাখা যাক এবার অস্থির বাংলাদেশে অপারেশন ডেভিল হান্ট। আওয়ামী লীগকে শেষ করতে সরকারি অ্যাকশন, দেশ জুড়ে টার্গেট আওয়ামী লীগ। আর এই পরিস্থিতিতে দ্রুত বাংলাদেশে ভোটের দাবি বিএনপির। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করার দাবি পদ্মা পারের নির্বাচন কমিশনের। ऑपरेशन डेविल हंट ये बांग्लादेश में हो रहा है, जो इंडियन रॉ के एजेंट हैं उनके खिलाफ। लेकिन इसका जो रद्दे अमल है, रिएक्ट है, वो धुआं है, वो बहुत ही ज्यादा टेंशन है, वो भारत में हो रही है। वो हिंदुस्तानी इस ऑपरेशन से बहुत ही ज्यादा खौफजदा हैं कि हमारे लोगों को पकड़ा जा रहा है। यानी ये आज तस्लीम किया जा रहा है, हिंदुस्तान की तरफ से माना जा रहा है कि हमारे ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খাन यूट्यूब चैनल। आशा करी আপনারা সবাই ভালো আছেন। आपको बताएं कि ऑपरेशन जो डेविल हंट है वो इस वक्त बांग्लादेश में जारी है और बांग्लादेश की हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जो शैतान है, शैतानियां करते हैं, जो बांग्लादेश में फसाद फैलाते हैं, बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन होगा, उनको पकड़ा जाएगा, उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। मजे की बात यह है कि जो अवामी लीग के कुछ नेताओं को पकड़ा गया है और जो इंडियन है वो ये कह रहे हैं, इंडियन ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि ये हमारे दोस्तों को पकड़ने का ऑपरेशन है, ये और कोई ऑपरेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अवामी लीग को दीवार से लगाने का ऑपरेशन है, ये अवामी लीग को डिस्ट्रॉय करने का ये ऑपरेशन है, उनके नेता को पकड़ा जा रहा है। वो इस तरह से आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आज आप मान रहे हैं कि हम शैतानी करते हैं, आज ये हिंदुस्तान मान रहा है कि अवामी लीग हमारी दोस्त है। और लेकिन बांग्लादेश ने किसी एक पार्टी को बिल्कुल भी टारगेट नहीं किया हुकूमत ने, बल्कि वो कह रहे हैं कि जो एजेंट है रॉ का, इंडिया का, वो उसको हम नहीं छोड़ेंगे। क्यों बांग्लादेश में वो इस तरह से टेरर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, फसाद डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनकी बांग्लादेश में कोई जगह नहीं है। और इंडियन मीडिया, वेस्ट बंगाल मीडिया का काम है कि वो इल्जाम लगाते हैं, आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी, बांग्लादेश की आर्मी, फिर रैप फोर्सेस और दीगर जो पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ये मिलकर अब जो अवामी लीग है या फिर जो इंडिया के जो फ्रेंड हैं उनको पकड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं है। आइए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक किया करें ज्यादा से ज्यादा और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले जी वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। রাখা যাক এবার অস্থির বাংলাদেশে অপারেশন ডেভিল হান্ট। আওয়ামী লীগকে শেষ করতে সরকারি অ্যাকশন, দেশ জুড়ে টার্গেট আওয়ামী লীগ। আর এই পরিস্থিতিতে দ্রুত বাংলাদেশে ভোটের দাবি বিএনপির। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করার দাবি পদ্মা পারের নির্বাচন কমিশনের। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে সারা দেশব্যাপী এই আওয়ামী ফ্যাসিবাদকে দমন করার জন্য অপারেশন ডেভিল হান্ট নামে একটি অপারেশন চালু হবে, যার মাধ্যমে আওয়ামী ফ্যাসিবাদকে এই দেশকে থেকে উৎখাত করা হবে। আওয়ামী লীগকে শেষ করতে মরিয়া ইউনূস সরকার। কোমর বেঁধে তারা ময়দানে নেমেছে। নামানো হয়েছে পুলিশ থেকে সেনা, র্যাব, বিজিবি এবং গোয়েন্দা বিভাগকেও ময়দানে নামিয়েছে বাংলাদেশের তদারকি সরকার। এই অপারেশনের আবার একটা গাল ভরা নামও দেওয়া হয়েছে, অপারেশন ডেভিল হান্ট। ডেভিল হান্ট যারা দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করে, যারা আইন অমান্য করে, দুষ্কৃতিকারী এবং সন্ত্রাসী, অনেকে আইনের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে এবং যাদের আইনের আওতায় নেওয়া আনা হয় নাই তাদেরও খুব তাড়াতাড়ি আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে এবং তাদের যেন সর্বোচ্চ শাস্তি হয় এই ব্যবস্থা করা। এই বিল যতদিন পর্যন্ত শেষ না হবে ততদিন পর্যন্ত অপারেশন চলবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে সারা দেশব্যাপী এই আওয়ামী ফ্যাসিবাদকে দমন করার জন্য অপারেশন ডেভিল হান্ট নামে একটি অপারেশন চালু হবে, যার মাধ্যমে আওয়ামী ফ্যাসিবাদকে এই দেশকে থেকে উৎখাত করা হবে। আওয়ামী লীগের নেতার বাড়িতে হামলা, তারপর পাল্টা জবাব, এরপর অপারেশন ডেভিল হান্টের নামে আওয়ামী লীগের নেতাদের টার্গেট, সেটা আবার সরকারিভাবে। এই পরিস্থিতিতে ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমেছে বিএনপি। বাংলাদেশের দ্রুত নির্বাচনের দাবিতে তারা সরব।
আপনাদের এই ইন্টেরিয়াম গভর্নমেন্টের ভিতর শয়তান আছে, আগে শয়তানকে ধরুন, এই শয়তানদের বিরুদ্ধে ডেভিল হান্ট করুন। শেখ হাসিনা ষড়যন্ত্র করার জন্যই ভারতে গিয়েছে। ইন্টেরিয়াম গভর্নমেন্ট রোড ম্যাপ দিয়েছেন, দরকারে টাইম লাইন দেন, নির্বাচনের যত প্রলম্বিত করবেন ষড়যন্ত্র ততই দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে উঠবে। 18 কোটি মানুষ একরকম চিন্তা করবে, এটা তো আশা করা তো মুশকিল। তালিয়া বাজাতে বাজাতে আমরা দেশটাকে 12টা বাজিয়ে দিয়েছি। সুতরাং এই তালিয়া বাজায় আমাদেরকে ভুলে যেতে হবে, আমাদেরকে দেখতে হবে প্র্যাকটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে সবকিছু। আমরা নিরপেক্ষ থাকতে চাই। রাজনীতিবিদদের ইনফ্লুয়েন্স অন দ্য ইলেকশন কমিশন যদি বন্ধ করা না যায়, নাইলে কিন্তু ইলেকশন কমিশন তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারবে না। নিউজ 18 বাংলা। অপারেশন ডেভিল হান্ট ঘিরে তোলপাড় বাংলাদেশে। মামলা হানাহানি ঠেকাতেই অপারেশন বলে দাবি তদারকি সরকারের। পদ্মাপাড়ে পরিস্থিতি ঠিক করতে চালু হবে কমান্ড সেন্টারও, ঘোষণা প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। প্রফেসর ইউনূস জানিয়েছিলেন ওনার ডিসিশন ছিল যে একটা কমান্ড সেন্টার এস্টাবলিশ করা, একটা সেন্ট্রাল, যার ফলে প্রত্যেকটা ল এনফোর্সিং এজেন্সি কে কি কাজ করছে সেটা যাতে খুব ভালো কোঅর্ডিনেট করা যায়। রেগুলার যেগুলো আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যেগুলো আছে, যেগুলো হোম মিনিস্ট্রির সাথে যুক্ত, পুলিশ আছে, বিজিবি আছে, তারপরে কোস্টগার্ড আছে, র্যাব আছে, এদের বাইরে আর্ম ফোর্সেসেরও এখানে প্রতিনিধি থাকবে। তো আমরা আশা করছি যে এর ফলে বাংলাদেশে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরো উন্নত হবে। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी। किस तरह से जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है इसको रिपोर्ट कर रहा है और वो कह रहा है कि देखें ये जो ऑपरेशन जो डेविल हंट है ये सिर्फ और सिर्फ अवामी लीग को पकड़ने के लिए है, उनके नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए है, उनको दीवार से लगाने के लिए है, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए है, अवामी लीग को उसकी तोड़ फोड़ करने के लिए है। लेकिन देखें, अवामी लीग और फिर अवामी लीग के कुछ नेता हैं, उन्होंने भी तो स्टूडेंट्स के ऊपर हमला किया था, उनको जख्मी किया था। 50 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं उनको जख्मी किया, वो हॉस्पिटल में गए। जिस वक्त आपको पता है कि शेख हसीना ने कहा कि भाई तैयार रहें, हर वक्त यूनुस सरकार के खिलाफ आप सड़कों पर निकल आए, यानी वो भी तो आग लगाने की कोशिश कर रही है हिंदुस्तान में बैठकर। किस तरह से अपने मुल्क को कह रही है कि ये एक टेररिस्ट लैंड है, यानी बांग्लादेश को दहशतगर्दों की सरजमीन कहा जा रहा है अनफॉर्चुनेट शेख हसीना की वजह से। और फिर आपको ये भी मैं बताऊं कि किस तरह से जो लोगों को मारा जा रहा है और सिविल वार की तरफ, यानी वो शेख हसीना लेकर जा रही है, सिविल वार क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ताकि फिर हम जो इंडियन आर्मी है वो कूदे बांग्लादेश में। जिस तरह से 1971 में आ गई थी, आकर उन्होंने जो टेरर किया था, इसी तरह वो उस तरह का प्लान बना रहे हैं इंडिया के साथ मिलकर शेख हसीना, ये भी कहा जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से। लेकिन भाई जो घर को हाउस नंबर 32 को डिमोलिश किया है, डिस्ट्रॉय किया है, अब उसके बारे में खबर आ रही है कि वहां से कुछ हड्डियां मिली हैं, वहां से कुछ इंसानी हड्डियां मिली हैं, यानी लोगों को वहां पर जाकर टॉर्चर किया जाता था, मारा जाता था। आईना घर, और वहां पर एक स्पेशल एक टॉर्चर सेल बना रखा था, रूम बना रखा था, यानी जो विरोधी थे, जो खिलाफ थे शेख हसीना के, उनको वहां पर आकर पनिशमेंट दी जाती थी। देखें किस तरह से जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गए हसीना के दौर में। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।